Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel Physics with Tazeen. Today we are here again with chapter number 15, Structure of Atoms and Nuclei of Maharashtra Board Syllabus. Here we are going to see the unsolved problems. The half-life of strontium is 28 years. Determine the disintegration rate of its 5 mg sample. So here half-life of the sample is given, that is T half is equal to 28 years. First we have to convert this year into seconds. So for that we have to multiply 28 with 3.156 into 10 to the power of 7 seconds. So we will get 8.837 into 10 raised to 8 seconds, and the mass is equals to 5 milligrams. That is equals to 5 into 10 to the power of milli का मतलब होता है -3 ग्राम्स. अब आप मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दिए और ईयर्स को सेकेंड में कन्वर्ट कर दिए बाय मल्टीप्लाइंग द 28 with 3.156 into 10 to the power of 7 seconds. Strontium is 90 मास और 38 इसका एटॉमिक नंबर है. तो यहाँ पर 90 ग्राम्स कंटेन 6.02 into 10 to the power of 23 atoms. N number of atoms is equals to 6.02 into 10 to the power of 23 multiplied with the mass, that is 5 into 10 to the power of -3 divided by the atomic mass number, that is N. This will give you 3.344 into 10 to the power of 19 atoms. The disintegration rate is, that is dN by dt is equals to n lambda, but we know the value for lambda is 0.693 by t half, that is time period, that is half life period. So we will get, this is the rate of disintegration. Now the another problem is the amount, what is the amount of cobalt 6027 necessary to provide the radioactive source of strength 10.0 milli-Ci. Its half-life being is 5.3 years. Here activity is given, that is 10.0 millicurie. Activity is 10.0 millicurie is given. So here मिली क्यूरी को आप 10.0 मिली की जगह पे लिखेंगे आप 10 टू द पावर -3. क्यूरी इज Ci. ये क्यूरी को आप डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग दिस विद 3.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई कर ये हो जाएगा डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड. तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी 3.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 मिलेगा. ई हाफ लाइफ इज गिवन, दैट इज 5.3 years. अब ईयर्स को आप इंटू 3.156 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 7, दिस विल गिव यू इन सेकेंड्स. तो आपको इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मिलेगा. नाउ लैम्डा इज इक्वल्स टू is equals to n lambda, therefore n is equals to activity by lambda. We know the activity is 3.7 into 10 to the power of 8 divided by lambda. Here we get 4.14 into 10 to the power of -9. हमको यहाँ n मिलेगा 8.933 into 10 to the power of 16 atoms. 60 grams of cobalt contains 6.02 into 10 to the power of 23 atoms. So therefore the mass of 8.93 10 to the power of 16 atoms of cobalt is इतना 8.933. इसका जो मास है आप उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे और 60 ग्राम से आप मल्टीप्लाई करेंगे. आपको मिलेगा 8.903 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 ग्राम्स. आपको मिला 8.903 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6. -6 का जगह पर आप लिख सकते हैं माइक्रोग्राम्स. ना आपको अमाउंट मिला है. दिस इज द आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सैंपल ऑफ कार्बन
ऑब्टेन फ्रॉम एनी ऑर्गेनिज्म, डीके रेट इसका 15.3 डीके पर सेकेंड ग्राम्स है। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पर A0 दैट इज एक्टिविटी द रेट ऑफ डीके यहाँ पर दिया हुआ है A0 15.3। अब ये सैंपल ऑफ कार्बन ऑब्टेन फ्रॉम ओल्ड चारकोल शोज द डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ 12.3 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड पर मिनट। यहाँ पर दूसरा जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इतना उसमें से डीके हुआ है, तो आपको वो एज ऑफ ओल्ड सैंपल की निकालना है, दैट इज टाइम पीरियड फॉर द एज, टाइम पीरियड फॉर द ओल्ड सैंपल आपको निकालना है। डीके कांस्टेंट उसका यहाँ पर दिया गया है, मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर स्मॉल t। हियर AT is given and A0 is given. This is the A0 that is डीके पर सेकेंड, जितना डीके हुआ रेट उसका एक्टिविटी का वो दिया हुआ है कार्बन एटम की, और यहाँ पर AT एक पर्टिकुलर टाइम पे इतना नंबर ऑफ एटम्स उसने डीके करा वो दिया हुआ है। तो आपका फॉर्मूला मिलेगा यहाँ 15.3 डीके पर ग्राम पर मिनट, दैट इज योर A0 इज गिवन, 12.3 डिसइंटीग्रेशन पर ग्राम पर मिनट, दैट इज AT इज गिवन। Now the decay constant that is lambda is 3.839 into 10 to the power of minus 12 per second is given. ये आपका फॉर्मूला है। अब यहाँ से आपको स्मॉल t की वैल्यू निकालना है। आपको AT दिया गया है, A0 दिया गया है, लैम्डा दिया गया है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर स्मॉल t। सो पहले आप ये A0 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो जब A0 यहाँ चला जाएगा तो वो डिवीजन में चला जाएगा। सो यू विल गेट, डिवीजन में जाने के बाद A0 डिवीजन में चला गया, AT डिवाइडेड बाय A0 इज इक्वल्स टू e टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा t। रेसिप्रोकल, अब ये माइनस साइन आपको यहाँ से हटाना है e की, तो आप क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे। तो आप इसको लिखेंगे, या आप AT बाई A0 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन e लैम्डा t लिखेंगे, या इसको आप रेसिप्रोकल कर देंगे, A0 बाई AT इज इक्वल्स टू e लैम्डा t। AT पहले ऊपर था, अभी A0 आ गया, तो जब लैम्डा यहाँ ऊपर था तो वो माइनस साइन में था, जब वो नीचे चला गया तो वो प्लस साइन में हो गया। अब आप इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपको ये मिलेगा A0 बाई AT इज इक्वल्स टू e लैम्डा t। अब आपको यहाँ से ये e हटाना है, e हटाने के लिए आप दोनों साइड्स पे लॉग लगाएंगे। नाउ यू हैव टू गिव द लॉग ऑन टू साइड्स, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। तो यहाँ लॉग e हमने लगाए हैं, तो ये वाला पावर नीचे उतर जाएगा और लॉग e ये बेस को लग जाएगा। लॉग टू द बेस e इज इक्वल्स टू 1, ये पूरा टर्म आपका 1 बन जाएगा। सो आपको मिलेगा आपको यहाँ a log of e is equals to 1, so you will get this term. Now you have to convert the log e to the log base, so for that you have to multiply। log e को log 10 में कन्वर्ट करने के लिए आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका ये ऊपर का इक्वेशन इस तरह से मिल जाएगा। योर मेन टारगेट इज टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर स्मॉल t। नाउ शिफ्ट दिस लैम्डा टू दिस साइड, यहाँ पर वो आकर वो डिवीजन में चला जाएगा। सो यू विल गेट देयरफॉर द फॉर्मूला फॉर t इज इक्वल्स टू, अब आपका ये वाला फॉर्मूला आपको मिलेगा। अब आप सब्स्टिट्यूट करिए सबकी वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू, लॉग ऑफ 10, A0 की वैल्यू, AT की वैल्यू, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर आपको मिलेगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको ये वाला टर्म मिला। अब आप log ऑफ 15.3 माइनस log ऑफ 12.3 इसको लिख सकते हैं। सो यू विल गेट, इस तरह से ये टर्म मिलेगा। अब log 15.3 का निकालिए और log 12.3 का निकालिए और उन दोनों के log को माइनस करिए, आपको मिलेगा। इन सब को माइनस करने के बाद आपको ये वाला टर्म मिलेगा 0.0948। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए और इससे डिवाइड करिए, आपको मिलेगा। नाउ यू विल गेट द फाइनल आंसर फॉर t एज, आप 5.687 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10 सेकेंड्स को ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए 3.156 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 7 से डिवाइड करेंगे, तो आपको आंसर 1802 ईयर्स मिलेगा। सो दिस इज द वैल्यू फॉर t इन ईयर्स एंड दिस इज द वैल्यू फॉर t इन सेकेंड्स। दिस इज ऑल अबाउट द अनसॉल्व्ड फॉर्मूलाज, दिस इज ऑल अबाउट द अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।